Hello students, welcome again in social science class. Before this we had done the chapter 13 up to the development in Delhi and Calcutta. Today we will discuss about the police in Delhi, railway under the British and the British impact on Indian painting, literature and architecture. So let's begin. Police in Delhi. As we earlier known that the population was increased in Delhi, lots of people were living there, so to maintain the organization and all the activities there was a different committees were formed, municipal committee and many development programs like DDA was established. Now to maintain the law and order in the city, the police system was also organized. So, police in Delhi, an efficient administration required proper maintenance of law and order. कि अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर वे में मेंटेन करना है तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मस्ट है. In 1857, the British laid down the foundation of a systematic police system under Indian Police Act. When did the British lay down the foundation of systematic police system? In 1857. And which was that act? Indian Police Act. Again there is a one mark question. Who organized police into regular force? आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरे पुलिस सिस्टम को एक सिस्टमेटिक किया था, रेगुलर फोर्स बनाया. एंड व्हाट वाज दैट? 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बेटे यहाँ आपसे पूछा जा सकता है. दैट हाउ एक्सप्लेन द पुलिस system or police system under the Lord Cornwallis. How Lord Cornwallis organized police system? The answer is Lord Cornwallis organized the police into a regular force. A superintendent of police looked after each district. हर एक डिस्ट्रिक्ट को कौन वॉच करेगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीन्स SP with the assistance of DSP, Deputy Superintendent of Police, and then each district was divided into thanas under darogas, and then villages and towns were looked after by the चौकीदार्स and कोतवाल्स respectively. विलेज और टाउन को कौन देखेगा वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर? चौकीदार्स एंड कोतवाल्स. In 1912, Delhi's first chief commissioner was appointed. When was Delhi first chief commissioner appointed? In 1912, and handed over the duties and responsibility of IG of police, IGP, Inspector General of Police. जो चीफ कमिश्नर बनाए अपॉइंट किया गया 1912 में, उन्हें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दी गई? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. Then in 1946, Delhi police was restructured with the appointment of Inspector General, Deputy Inspector General and Superintendent. जो पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिस्टम शुरू किया था, अब उसे रीस्ट्रक्चर किया गया 1946 के अंदर. अब उसमें क्या था? IG, DIG एंड SP, सुपरिटेंडेंट, ये सभी थे. नाउ रेलवे अंडर द ब्रिटिश. क्योंकि अब ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट हर जगह पर कंट्रोल कर लिया, उन्होंने इतनी बैटल्स की. अब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी संभाल रहे हैं. तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए दे रिक्वायर्ड प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो दे इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया. एंड इट वॉज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियंस. उन्होंने इंडिया के बेनिफिट के लिए रेलवे इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि इंडियन लोगों को आने जाने में मुश्किल होती है तो हम रेलवे इंट्रोड्यूस करें. दे जस्ट इंट्रोड्यूस रेलवे फॉर देयर ऑन बेनिफिट बिकॉज देयर मेन मोटिव इन इंडिया वॉज टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. उनका मकसद था प्रॉफिट करना, अपना एक प्रॉफिट अपनी कंट्री और अपने लिए फ़ायदा का था. तो इसीलिए उन्होंने इंडिया के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस किया. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हेन डिड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे एंड व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट. क्यों इंट्रोड्यूस किया था? रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड ट्रेड. But railways brought many changes in the life of Indians. People from different parts of India came in close contact.
This communication brought about an awareness against the social evils, need of education and freedom from the foreign exploitation. देखो ब्रिटिश ने रेलवे इंट्रोड्यूस तो अपने बेनिफिट के लिए किया था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर करने के लिए, पॉलिटिकल कंट्रोल को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और ट्रेड पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्या ब्रिटिश रेलवे अपने साथ उठाकर तो नहीं ले गए. इट वॉज द अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री. हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हुई. इट ऑल्सो गिव बेनिफिट टू आर कंट्री. कैसे बेनिफिट मिला? नाउ पीपल कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ इट. हमने 1857 में क्या पढ़ा था कि क्यों हम फेलियर रहे इस रिवोल्ट के अंदर? बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहे थे. तो अगर वो पहुंच जाते तो शायद ये मोमेंट ज़्यादा स्प्रेड होता. तो अब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं. एंड व्हेन पीपल ट्रैवल टुगेदर, इट गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग द आइडियाज़. अब लोग एक साथ ट्रैवलिंग करेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, जो कंट्री की सिचुएशन चल रही है उसके बारे में अपने एक दूसरे से बातचीत करेंगे. तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिला कि जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी डिस्कस हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई एंड दे फील द नीड ऑफ एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन एक्सप्लोरेशन. तो वहाँ पर उन्होंने, रेलवे ने हेल्प किया हमारे जो नेशनल मूवमेंट को और ज़्यादा भी उसे स्ट्रॉन्ग करने में. People met with them, they exchanged their idea and it became the cause to create a feeling of nationalism among the Indian. So Indian Railway made a beginning on April 6, 1853 when the very first train ran over a stretch of 21 miles from Bombay to Thane. पहली बार जो इंडिया के अंदर रेलवे ट्रेन, जो रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ? 6 अप्रैल 1853. और लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. जो पहली ट्रेन थी, पहली रेलवे जो ट्रेन हमारी चली थी, वो कब और कहाँ से चली थी? बॉम्बे टू थाने. और कितने माइल चले? 21 माइल्स. एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 14 रेलवे कैरेज एंड 400 गेस्ट. इसके जो ट्रेन के कितने डिब्बे थे? 14 थे. और सभी के सभी वो सागवान लकड़ी के बने हुए थे. और पहली बार कितने लोगों ने इसमें ट्रैवल किया? 400 पीपल ने. यस दिस वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया. ये आपको दिखाया भी गया पिक्चर में, देखो. Now next is, why did British introduce? What was the purpose behind to introduce the railway? First one is commercial advantage. Railway collected raw material from fields and mines and sent them to the ports to be transported to the England to feed the British industries. तो पहला उनका मेन मोटिव क्या था रेलवे के लिए? रेलवे के द्वारा वो अलग अलग एरिया से रॉ मटेरियल, पहले माइंस वहाँ से कलेक्ट करते एंड देन सेंड देम टू द पोर्ट, क्योंकि वो पोर्ट के थ्रू इंडिया में एंटर करते, वाटरवे के थ्रू, तो वहाँ तक पहुँचाया जाता. फिर वो रॉ मटेरियल आगे वो इंग्लैंड में भेजते ताकि उनकी इंडस्ट्री जो है और ज़्यादा डेवलप हो सके, उन्हें वो मटेरियल मिल सके. So first reason is commercial advantage. Second, political aspect. Railway safeguarded the British possessions in different parts of India to enable quick movement of armed forces and administrative convenience. क्योंकि हमने चैप्टर 9 में भी आपने पढ़ा था कि इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कितनी बैटल्स की. तो उन बैटल्स के लिए उन्हें मूव भी करना, जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होती तो रेलवे की वजह से वो अब आसानी से उस जगह तक पहुंच जाते. जहाँ पर भी इंडियन लोग रिवोल्ट करते या कुछ भी उनके अगेंस्ट होते तो वो क्विकली मूव करते, अपने सोल्जर्स को वहाँ पर भेज देते और उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते. और इस तरह उन्होंने अपने जो यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल को और ज़्यादा फर्म किया. Defense aspect. Most importantly, the railway helped the British defense forces in India to counter the military attacks of other imperialist countries who were trying to expand their influence.
चैप्टर 8 में हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारी फॉरेन की कंट्रीज़ थी जो इंडिया में आई थी डिफरेंट पर्पज़ के लिए, कोई एडवेंचर के लिए, कोई इन्वेडिंग के लिए, कोई ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए तो ट्रेड करने के लिए थे, लेकिन ये हमारे मास्टर्स बन गए थे। तो अब क्योंकि ये अपने आप को यहाँ पर सुप्रीम पावर मानते थे कि कोई और कंट्री इंडिया के ऊपर आकर अपना कंट्रोल ना करे, ना ही यहाँ से कोई बेनिफिट ले, तो इसके लिए भी वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी उन्होंने रेलवे हेल्प मिले थे कि कहीं पर भी अगर लगता तो वो उसके थ्रू अपने सभी सोल्जर्स का या सभी उन्हें डिफेंड कर रहे थे अदर कंट्रीज से, because they want to expand their own influence, not the other imperialist countries. So last one is investment of surplus income. Now railway opened new areas where the investment earned huge profits. अब देखो शुरू तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था, ट्रेडिंग पर्पस या पॉलिटिकल के लिए, लेकिन यहाँ से एक इनकम सोर्स और बन गया उनका। अब जब लोग ट्रैवल करेंगे रेलवे में तो ऑब्वियसली वो टिकट भी लेनी पड़ेगी और रेलवे के अंदर भी बहुत सारे बिजनेस वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट गेव द बेनिफिट टू द इंडियंस। So 4 purpose: commercial advantage, political aspect, defense aspect, and investment of surplus income. The Kalka Mail from Havda to Kalka was introduced to make the annual migration of British officials, their families, servants, and clerks from the then imperial capital at Calcutta to the summer capital in Shimla. क्या यहाँ पर बताया है कि उन्होंने एक रेलवे स्पेशल ट्रेन इंट्रोड्यूस की थी, कालका मेल। कहाँ से चलती थी ये? हावड़ा टू कालका। क्योंकि ब्रिटिश की उस टाइम कौन सी कैपिटल थी? इंपीरियल कैपिटल कलकत्ता थी। तो वहाँ जब मौसम चेंज होता, सीज़न चेंज होता था, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, जो भी उनके ऑफिशियल्स और फैमिलीज थे, वो जब समर आती तो वो एक कूल एरिया पे मीन्स नॉर्थ इंडिया में शिमला चले जाते थे। तो उन्होंने वो ट्रेन स्पेशल बनाई। वहाँ कैपिटल भी उनकी यही था, समर के अंदर उनकी कैपिटल क्या होती थी? शिमला, और अदर सीज़न में क्या कलकत्ता से वो एडवे स्टेशन चला रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर मूव करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन चलाई, दैट वाज कालका मेल फ्रॉम हावड़ा टू कालका। Why was it introduced? To make the annual migration of British officials, their families, servants, and clerks. From Kalka, there is a still narrow gauge to Shimla that passes through the 103 tunnels, but only 102 tunnels are operational now. अब उस रेलवे को बनाने के लिए टनल्स, क्योंकि जो रॉक एरिया या जो भी वो पाथ बनाने के लिए वहाँ पर टनल सुरंगें बनाएगी। 103 टनल्स वर देयर, बट उनमें से जो वर्क कर रही हैं वो जो यूज़ हो रही है वो कितनी है? 102. There was a lot of opposition against the introduction of railway in India. It offended the people of higher caste, as people from all castes had to sit together. Moreover, Indians were not allowed to travel in the first class. It was reserved for the Europeans. But in any case, railways provided many avenues of profit making for the British. अब जैसे इस टॉपिक के बिगनिंग में मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस किया अपने बेनिफिट के लिए, बट इट अल्टीमेट वाज द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो रेलवे के यहाँ पर हम दोनों तरह से पॉइंट्स बता सकते हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे हैं कि लोग अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, उनमें कम्युनिकेशन बढ़ा, आइडिया एक्सचेंज हुए, एंड इट हेल्प टू द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम इन इंडिया। लोगों में अवेयरनेस, इट क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द इंडियंस। लेकिन साथ साथ इसके तो कुछ डिसएडवांटेज भी थे, डीमेरिट्स भी थे, दैट वाई इंडियन पीपल वर अपोज द रेलवे। यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि कुछ लोगों ने रेलवे को अपोज किया, वो रीज़न क्या था? क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर पहले कास्ट सिस्टम बहुत पॉपुलर था। जो हाई कास्ट के लोग थे, दे डिडंट वांट एनी कनेक्शन विद द लो कास्ट पीपल। तो लो कास्ट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे, उनके साथ इकट्ठे वो कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते थे। लेकिन ब्रिटिश ने जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पर क्या था
उन्होंने अपने लिए जो जितने भी बेस्ट अपार्टमेंट थे रेलवे के, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, दे वर रिजर्व ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स। वो ब्रिटिशर्स उसमें सफ़र कर सकते थे और इंडियन को सिर्फ जो ऑर्डनरी कंपार्टमेंट वहाँ पर कर सकते थे। एंड दे ऑल पीपल, ऑल इंडियन लाइक हायर कास्ट एंड द लो कास्ट, दे हैव टू सिट टुगेदर, ट्रेवल टुगेदर। अगर हम पॉजिटिवली देखें तो ये गुड साइन था कि कंट्री में यूनिटी बढ़ रही है। बट उस टाइम कास्ट सिस्टम था, तो हाई कास्ट के लोगों को लगता था कि हमें इन लो कास्ट के साथ बिठा रहे हैं, हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है, हमारी कास्ट में, तो इसलिए वो उनको अपोज कर रहे थे। और इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास किसके लिए रिजर्व थी? ओनली फॉर द यूरोपियंस। सो it gave the benefit to the Britishers, but it was also beneficial for the Indians. But why was it opposed, it criticized by the Indian people? Because it created the discrimination हो रहा था इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में। ऑल पीपल कैनॉट ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, इंडियन हैड टू ट्रैवल इन द ऑर्डनरी। And you know students, Indian Railway is the largest rail network in Asia and the world's second largest after USA. डेली कितने पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं? ओवर 23 मिलियन पैसेंजर्स। दैट्स अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मीन्स ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने तो हमारे डेली पैसेंजर रेलवे में सफ़र करते हैं। सो इंडियाज़ रेलवे इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स with the staff of over 1.4 million people. ऑब्वियसली जब इतना बड़ा नेटवर्क है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, जॉब्स भी मिल रहे हैं। मैनी पीपल आर डूइंग जॉब इन द रेलवे डिपार्टमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेलवे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग्स, लिटरेचर्स एंड आर्किटेक्चर। क्योंकि ब्रिटिश जब इंडिया में 200 साल तक उन्होंने हमारे कंट्री में रूल किया, तो उन्होंने हमारी लाइफ के हर स्फीयर्स में, हर फील्ड में अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा था। हर जगह पर उन्होंने इंटरफेरेंस की, चाहे वो रिलीजन था, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ थी, चाहे एजुकेशन था, पॉलिटिक्स था, एवरीवेयर दे हैड इन्फ्लुएंस। So what was the impact of British on the Indian painting, literature and architecture? The art, architecture, painting, literature, poetry, drama, novels and even Indian religion and philosophy were greatly influenced by the Western context. Many English painters arrived here. First of all, we will discussing about the painting. Painting के ऊपर ब्रिटिश का क्या इन्फ्लुएंस रहा था? Many English painters arrived here in search of princely patronage and to please the rich British society. बहुत सारे ब्रिटिश पेंटर जो इंडिया में आए थे, यहाँ की ब्यूटी को अपनी पेंटिंग से के थ्रू वो अपने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें खुश करना चाहते थे कि अगर हम उन्हें अच्छी पेंटिंग, यहाँ अलग अलग आइडियाज़ जो उनको पेंट करके शो करेंगे तो उससे उनके जो ऑफिसर्स हैं वो प्लीज़ होंगे। एंड सच पेंटिंग हैड थीम ऑफ इंडियन रॉयल कॉर्ड्स, फ्लोरा एंड फोना। उन्होंने इंडिया का जो फ्लोरा फोना को अपना थीम बनाया और उसके बेस पे उन्होंने अपनी पेंटिंग वो बनाई थी। एंड इंडियन पेंटर्स ऑल्सो चेंज द सिलेक्शन ऑफ थीम्स एंड मीडियम ऑफ पेंटिंग। जो इंडियन पेंटर्स थे दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश पेंटर्स। उन ब्रिटिश पेंटिंग से इन्फ्लुएंस हुए, जो उनकी गुड क्वालिटीज़ थी, चाहे उनके वो थीम्स थे या स्टाइल ऑफ पेंटिंग था, आवर इंडियन पेंटर ऑल्सो अडॉप्टेड एंड दे चेंज द मीडियम ऑफ पेंटिंग. The eminent Indian painters like Raja Ravi Verma, Abhinandannath Thakur, Gemini Roy, etc., they were greatly influenced by the Western style of painting. These were the different paintings: Galaxy of Musicians, Saraswati playing tambora, Lady with a lamp, and Shakuntala. These were the paintings done painted by the Indian painters. And next is architecture. Many huge architecture wonders were built in the port city of Madras, and many churches were constructed in English style with the artistic carving. मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो उन्होंने जब डीअर्बनाइजेशन के बाद अर्बनाइज किया, सिटीज़ को डेवलप किया, तो उनका मेन फोकस जो ज़्यादा, जिसको सबसे ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया था वो कौन सी थी? जो प्रेसिडेंसी टाउन थे, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग
बिल्डिंग्स वहाँ बनाई, दिल्ली के अंदर भी बनाई क्योंकि वो कैपिटल सिटी बनी उनकी। और जो वहाँ बिल्डिंग्स तैयार की गई, आर्किटेक्चर था, दैट वाज ब्रिटिश स्टाइल, उनका अपना स्टाइल था, उस स्टाइल को यहाँ पर वो लेकर आए। एंड द गवर्नर ऑफ मद्रास गिव द सिटी अ कॉलोनियल लुक, बिल्कुल जैसे उनके उन कंट्री में वहाँ लुक थी वो सेम उन्होंने इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट किए। लुक विद द बंगलोज एंड बैंक्वेट हॉल्स टू सूट द ब्रिटिश लाइकिंग फॉर ऑफिशियल इवनिंग फंक्शन, जो भी उनके इवनिंग के फंक्शंस होते थे वहाँ पर होते थे। In Bombay city also, churches, town halls, railway stations and many other structures were constructed that resemble famous buildings in the England. जैसे इंग्लैंड में बनी हुई है सेम वैसे उसी स्टाइल के अंदर उन्होंने इंडिया में भी बनाई। ये आज भी सभी बिल्डिंग, ये देखो आप देख सकते हो, टाउन हॉल चेन्नई, वॉइसरॉय हाउस इन शिमला एंड विक्टोरिया टर्मिनस इन मुंबई, ये सभी ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश स्टाइल के अंदर इंडिया में बनाए थे। And now last is literature. The British influenced Indian literature also. The scholars at the Fort William College in Calcutta, they translated the ancient text, wrote grammars, compiled dictionaries and collected the manuscripts in the English. सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन ही इन्फ्लुएंस हुए थे, ब्रिटिशर्स ने भी जो हमारा ओल्ड टेक्स्ट था, इंडियन टेक्स्ट था या इंडियन बुक्स थे, उन्हें अपनी लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। उन्होंने ग्रामर भी लिखी और बहुत सारी जो लाइब्रेरीज सेटअप की और वहाँ पर वो लिटरेचर कंपाइल करके वहाँ रखा। एंड नॉट ओनली द ओरिजिनल लिटरेचर, इवन द ट्रांसलेशंस हाईलाइटेड द ग्रेटनेस ऑफ द ब्रिटिश। और उन्होंने वो बुक्स यहाँ पर उन लाइब्रेरीज़ के अंदर रखी जो कि उन कॉलेजेस में जो कि ब्रिटिश के कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि वो क्या कहते थे इंडियंस को कि हमारा कल्चर सबसे सुपीरियर है, हमारी सिविलाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप पर है, वी आर द सिविलाइज्ड पीपल एंड जेंटलमैन। और जो अदर कंट्रीज़ हैं, ये इंडियन लाइक कंट्रीज़ हैं, ये अनसिविलाइज हैं। तो उन्हें इंडियंस को ये बता रहे थे कि आप हमारे एटिकेट्स, हमारा कल्चर, हमारा लिटरेचर को पढ़ो और उसे अडॉप्ट करो, ताकि वो उनको अपने मास्टर्स मानने में उन्हें दिक्कत ना हो और उन्हें लगे कि वाकई में जो ब्रिटिशर्स हैं वो सबसे सुपीरियर हैं, तो उन्हें ईज़िली उनको जो वो उनको फॉलो कर सकें। लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी थी जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने उससे अडॉप्ट भी की, लाइक द ग्रेट लिटरेरी फिगर्स रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष, सरोजनी नायडू, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एट्सेट्रा। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग। उन्होंने अपने राइटिंग के में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वेस्टर्न कल्चर को पढ़कर, देखो वेस्टर्न कल्चर को पढ़ना या एजुकेशन लेना बुरी बात नहीं थी। बुरी बात वो तब होती कि जब हमारे जो राइटर्स थे या फिलोसफर थे, अगर वो उन्हीं को अडॉप्ट करते या मींस वो ब्रिटिशर्स को सुपीरियर मानते। ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन क्यों इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में कि ताकि हम इनके ऊपर रूल आसानी से कर सकें और इनको अपना लिटरेचर पढ़ाएंगे तो ये हमारे लिटरेचर को पढ़ के हमें अपना मास्टर मानना शुरू कर देंगे, उन्हें लगेगा कि ये सही है। लेकिन एक्चुअल में जब एजुकेशन स्प्रेड हुई तो इट क्रिएटेड एनलाइटमेंट अमंग द इंडियंस। इंडियन लोग जागरूक होने लगे, उन्हें समझ आने लगी कि ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो इट क्रिएटेड अवेयरनेस एंड एनलाइटमेंट अमंग द इंडियंस एंड विच वॉज बेनिफिट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल further on. So this is all about this chapter. Clear students? Okay, bye.